يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کے اس درس میں ہم کلمہ اور اسم کی پہچان کریں گے. سب سے پہلے ہم کلمہ کو دیکھتے ہیں. کلمہ ہمارے منہ سے مختلف لفظ اور الفاظ نکلتے ہیں. وہ لفظ جو بامعنی ہوں اور جس سے کوئی معنی سمجھ میں آ جائیں اسے کلمہ کہتے ہیں. یعنی اگر جو بھی لفظ ہے وہ میننگ فل ہے، اس کے معنی سمجھ آ رہے ہیں، وہ بامعنی ہے، تو اسے ہم کلمہ کہیں گے. اور وہ لفظ جس کے معنی سمجھ نہیں آ رہے، جس کے کوئی معنی نہیں ہے، میننگ لیس ہے، اسے ہم مہمل کہیں گے. کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں: اسم یعنی ناؤن، فعل یعنی ورب، اور حرف یعنی پارٹیکلز یا پریپوزیشنز. عربی گرامر کے 2 حصے ہوتے ہیں: نحو اور صرف. نحو اسم کی بدلتی حالت ہوتی ہے یا سینٹنس کا سٹرکچر ہوتا ہے، اور صرف فعل کی بدلتی حالت ہوتی ہے. کلمہ جان لینے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسم کیا ہے. اسم کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ہم اسم کہتے ہیں. اسم میں کوئی ٹائم فیکٹر نہیں ہوتا. اب سوال یہ ہے کہ ہم اسم کی پہچان کیسے کریں گے؟ تو اسم کی پہچان 4 چیزوں سے ہوتی ہے: قسم، تعداد، جنس اور حالت. سب سے پہلے ہم اسم کی قسم دیکھتے ہیں. اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں: معرفہ اور نکرہ. جس بھی اسم سے پہلے ال لگا ہوتا ہے تو وہ معرفہ کہلاتا ہے. اسم معرفہ یعنی پراپر ناؤن. اگر ہم نے کسی خاص چیز کا ذکر کرنا ہے، کوئی خاص نام لینا ہے، تو اس کے لیے ہم ال لگاتے ہیں. فار ایگزامپل، الکتابو، دا بک. یعنی یہاں ہم کسی خاص کتاب کا ذکر کر رہے ہیں. البیتو، دا ہاؤس. یہاں ہم کسی خاص گھر کا ذکر کر رہے ہیں. تو ہمیں جب خاص چیز کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہم ال لگا دیتے ہیں. اسی ال کو ہم لام التعریف بھی کہتے ہیں. اسم کی دوسری قسم ہے نکرہ یعنی کامن ناؤن. اگر کسی لفظ کے آخر میں تنوین لگی ہوتی ہے، 2 پیش، 2 زیر یا 2 زبر، تو ایسے اسم کو ہم اسم نکرہ کہتے ہیں. فار ایگزامپل، کتابن، رجلن. کتابن سے مراد کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، اور رجلن سے مراد کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے. یہاں 2 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ جس بھی اسم کے ساتھ ال لگا ہوگا اس کے ساتھ تنوین نہیں آئے گی، اور جس اسم کے ساتھ تنوین لگی ہوگی اس کے ساتھ کبھی بھی ال نہیں آ سکتا. اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ معرفہ خاص اسم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور نکرہ عام اسم کے لیے استعمال میں آتا ہے. قسم کے بعد ہم سیکنڈ چیز جو دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اسم کی تعداد کیا ہے. کسی بھی اور زبان میں سنگولر اور پلورل ہوتا ہے، یعنی واحد اور جمع ہوتا ہے، لیکن عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جس میں ڈوئل کا صیغہ بھی موجود ہوتا ہے، جس کو ہم مثنیٰ یا تثنیہ کہتے ہیں. اس کے بعد ہم جنس دیکھتے ہیں. جنس میں ہم مذکر اور مؤنث کی پہچان کرتے ہیں.
मोअन्नस हम 3 चीजों से पहचानते हैं, समाई, कयासी और हकीकी। सबसे पहले हम देखते हैं मोअन्नस समाई क्या होता है। वो अस्मा जो अहले ज़बान मोअन्नस इस्तेमाल करते हैं, उनमें कोई ज़ाहिरी मोअन्नस की अलामत नहीं होती है, जैसे कि जहन्नम, नारुन, हरबुन, शमसुन, अर्दुन, रीहुन, नफ्सुन वगैरह वगैरह। कुरान में मोअन्नस समाई जो हैं वो 16 से 17 ही अल्फाज हैं सिर्फ, जो कि आगे आप एग्जाम्पल्स में इंशाल्लाह हम देखते जाएंगे। उसके बाद मोअन्नस कयासी आता है। मोअन्नस कयासी क्या है? यानी किसी भी जाहिरी अलामत से हम कयास करते हैं, हम अंदाजा लगाते हैं कि ये मोअन्नस है, यानी जाहिरी अलामत से मोअन्नस कयास किया जाता है। जैसे कि मुस्लिम के साथ अगर ताए मरबूता लगी हुई है तो हम कयास करते हैं कि ये मोअन्नस है। मुस्लिमातुन, इसके साथ ताए मरबूता लगी हुई है तो हम कयास कर रहे हैं कि ये मुअन्नस है। 99% जो इस्म है जिनके साथ ताए मरबूता लगी हुई होती है वो मुअन्नस होते हैं, लेकिन बाज ऐसे इस्म भी होते हैं जिनके साथ ताए मरबूता लगी होती है लेकिन वो मुअन्नस नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल खलीफतुन, अल्लामतुन, तो इसको हम कहेंगे कि ये ताए मरबूता की एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि खलीफा और अल्लामा दोनों ही मुज़क्कर हैं। उसके बाद जिस भी इस्म के आखिर में अलिफ और हमजा लगा होगा, अलिफ ममदूदा, उसको भी हम कयास करेंगे कि ये मुअन्नस ही है। फॉर एग्जाम्पल सहराउन, लेकिन इसके अंदर भी क्या एक्सेप्शन आ जाएगी? माआ के मतलब है पानी। पानी मुज़क्कर होता है, मुअन्नस नहीं होता, तो ये अलिफ ममदूदा की एक्सेप्शन हो जाएगी। उसके बाद जिस भी इस्म के आखिर में अलिफ और या लगी होगी, अलिफ मकसूरा, तो ऐसा इस्म भी हम मुअन्नस कयास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उज़मा, सलमा, कुबरा वगैरह वगैरह। लेकिन इसके अंदर भी जिस तरह से मूसा, ईसा आते हैं तो ये अलिफ मकसूरा की एक्सेप्शंस हो जाएंगे, क्योंकि ये सब जानते हैं कि मूसा और ईसा वो मुज़क्कर हैं। फिर आता है मुअन्नस हकीकी, उसके अंदर सारे मुअन्नस नाम आ जाएंगे, ज़ैनब, मरियम वगैरह, और जितने भी मुअन्नस रिश्ते हैं जैसे कि माँ, खाला, बहन, चाची, मामी वगैरह वगैरह, ये सारे जो हैं मुअन्नस हकीकी के जुमरे में आ जाएंगे। तो यहां आपने देखा कि मुअन्नस की पहचान जो है वो हम 3 चीजों के साथ कर रहे हैं। समाई, जो अहले जबान मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। कयासी, किसी भी जाहिरी अलामत से मुअन्नस। जाहिरी अलामतें क्या हैं? ताए मरबूता, अलिफ ममदूदा और याए मकसूरा। और तीसरी क्या चीज है? मुअन्नस हकीकी, यानी आपके सारे हकीकी रिश्ते और जितने भी मुअन्नस नाम हैं। इन 3 चीजों के साथ हम मुअन्नस की पहचान करते हैं। चौथी चीज जो हम इस्म की पहचान में देखेंगे वो है हालत। जिस तरह उर्दू में आप कहते हैं लड़कियां खेल रही थीं या लड़कियों को चोट आई, इंग्लिश में आप कहते हैं आई टोल्ड हिम, ही टोल्ड मी। यहां आपने देखा कि ही कभी हिम में बदल जाता है, लड़कियां कभी लड़कियों में बदल जाता है। ये इसलिए होता है कि इस्म की हालत बदल जाती है। उर्दू और इंग्लिश की तरह अरबी में भी इस्म की मुख्तलिफ हालतें होती हैं। अरबी जबान में इस्म की 3 हालतें होती हैं, पेश, जबर या जेर। सबसे पहले हम देखते हैं कि पेश क्या होता है।
पेश को हम अरबी में रफा, दम्मा या मरफू कहते हैं। इस्म की असली हालत मरफू ही होती है। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिमुन, मीम के ऊपर पेश इस बात की अलामत है कि इस्म की रफ़ई हालत है। उसके बाद जो इस्म की दूसरी हालत है वो है जबर। जबर को अरबी में हम नसब, फतहा या मंसूब कहते हैं। नस्बी तनवीन का एक रूल है कि जब भी नस्बी तनवीन आएगी तो आखिर में अलिफ उसके साथ आएगा लिखने में, लेकिन ताए मरबूता और हमजा के ऊपर अगर नस्बी तनवीन भी है तो भी अलिफ नहीं लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिमन, यहां पर मुस्लिम की नस्बी हालत है, नस्बी तनवीन है मुस्लिमन, तो देखिए लिखने में साथ में अलिफ आ गया। इस्म की जो तीसरी हालत है जेर, उसको अरबी में कहते हैं जर, कसरा या मजरूर। उसकी एग्जाम्पल है मुस्लिमिन, मीम के नीचे दो जेरी तनवीन देख रहे हैं आप, तो ये हो जाएगी इसकी जेरी हालत मुस्लिमिन। किसी भी लफ्ज के आखिरी हिस्से में होने वाली चेंजेस को अरबी ग्रामर में एराब कहते हैं। और किसी भी इस्म के एराब हम किस तरह से पहचानेंगे, उसका जो लास्ट लेटर पे जो भी एराब है इस्म की वो ही हालत है। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिमुन, मुस्लिमुन की पहचान आप किस तरह से करेंगे? सबसे पहले आप किस्म देखेंगे, इसकी किस्म क्या है, मारफा है या नकरा, तो ये नकरा है। फिर इसकी तादाद क्या है, ये वाहिद है। जिन्स क्या है, मुज़क्कर है। और इसकी एराबी हालत क्या है, ये रफ़ई तनवीन है इसके ऊपर। मुस्लिमुन, एक मुसलमान मर्द। अब आपने कहना है दो मुसलमान मर्द या तमाम मुसलमान मर्द, वो हम कैसे कहेंगे? उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल को हम गर्दान कहते हैं और जो इसका एक बॉक्स है उसको हम सीगा कहते हैं। टेबल हम इसी तरीके से बनाएंगे, ऊपर हम तादाद लिख देंगे, वाहिद, तस्निया, जमा, और साइड में इनकी हम तीनों हालतें लिख देंगे, मरफू, मंसूब और मजरूर। सबसे पहले हम मुज़क्कर की ही गर्दान बना रहे हैं। रफ़ई हालत हम सबसे पहले देखते हैं। वाहिद हमने किया था, वाहिद क्या होता है, मुस्लिमुन, ये इसकी रफ़ई हालत है, एक मुसलमान मर्द। अब हमने कहना है दो मुसलमान मर्द, तो मुस्लिम अपनी जगह ही रहेगा, इसके साथ हम अलिफ और नून की एडिशन कर देंगे। अलिफ से पहले जबर और नून के नीचे जेर, तो ये हो जाएगा मुस्लिमानी, दो मुसलमान मर्द। अब हमने कहना है तमाम मुसलमान मर्द, जमा के सीगे में आ जाइए। मुस्लिम एज इट इज रहेगा, उसके साथ आप वाव और नून की एडिशन कर देंगे। वाव से पहले पेश और वाव पे सकून, नून के ऊपर जबर, ये हो जाएगा मुस्लिमूना, तमाम मुसलमान मर्द। जिस भी जमा में उसकी स्पेलिंग सेम रहती है, यानी उस इस्म की स्पेलिंग सेम रहती है, सिर्फ वाव और नून का एडिशन होता है, ऐसे जमा को हम जमा सालिम कहते हैं। ये आपने इस्म की रफ़ई हालत देखी, वाहिद, तस्निया, जमा। अब हम देखते हैं इस्म की नस्बी हालत कैसे होती है। मंसूब वाली लाइन में आ जाइए। मंसूब मुज़क्कर वाहिद, मुस्लिमन। मुस्लिम के ऊपर जब आपने नस्बी तनवीन लगाई, तो याद है अभी हमने बताया था कि जब भी नस्बी तनवीन आएगी तो उसके साथ अलिफ लिखा जाएगा आखिर में। तो इसकी शक्ल फिर इस तरह हो जाएगी, मुस्लिमन, एक मुसलमान मर्द। मायने वही रहेंगे, सिर्फ हालत चेंज हुई है। नस्बी तस्निया के सीगे में आ जाइए।
मुस्लिम के साथ या और नून की एडिशन कर दीजिए। या से पहले नसब, या पे सकून और नून के नीचे जेर। मुस्लिमैनी यानी 2 मुसलमान मर्द, मायने वही रहेंगे। जमा के सीगा में आ जाइए, मुस्लिम ऐसे ही रहेगा और उसके साथ यहां भी या और नून का ही एडिशन होगा, लेकिन या से पहले जेर आएगा और या पे सकून, नून के ऊपर जबर, ये हो जाएगा मुस्लिमीना। ये इस्म की नस्बी हालतें हो गई, वाहिद, तस्निया और जमा। अब हम जेरी हालत की तरफ जाते हैं, यानी मजरूर। वाहिद क्या हो जाएगा? मुस्लिमिन, एक मुसलमान मर्द। जेरी हालत का तस्निया जमा नस्बी हालत की तरह ही होता है, तो इसका तस्निया भी हो जाएगा मुस्लिमैनी और जमा हो जाएगा मुस्लिमीना। तो ये आपकी मुजक्कर की गर्दान पूरी बन गई है, नकरा की। जिस तरह हमने नकरा की गर्दान बनाई है, उसी तरह हम मारफा की गर्दान भी बनाएंगे। मारफा की गर्दान कैसे हो जाएगी? अल लगेगा तो तनवीन ड्रॉप हो जाएगी, ये हो जाएगा अल मुस्लिमू, अल मुस्लिमाने, अल मुस्लिमूना। नस्बी हालत कैसे हो जाएगी? अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमैने, अल मुस्लिमीना। मजरूर अल मुस्लिमी, अल मुस्लिमैने, अल मुस्लिमीना। ये तो आपकी मुजक्कर की गर्दान थी, मारफा और नकरा। आए अब हम देखते हैं कि मोन्नस की गर्दान हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो इससे मोन्नस की पहचान हम देख रहे हैं, ताए मरबूता। मुस्लिम के साथ जब आप ताए मरबूता लगा देंगे तो ये हो जाएगा मुस्लिमातुन, यानी एक मुसलमान औरत। अब इसकी गर्दान बनाते हैं। मरफू हालत सबसे पहले देखते हैं, वाहिद के सीगे में आ जाइए। मुस्लिमतुन, एक मुसलमान औरत। इसका तस्निया हो जाएगा मुस्लिमतुन के साथ अलिफ और नून की एडिशन हो जाएगी। अलिफ से पहले जबर और नून के नीचे जेर, क्या बनेगा ये? मुस्लिमतानी। इसका जमा कैसे बनेगा? मुस्लिमातुन। यहां पर हमने अलिफ और ते की एडिशन करी है, मुस्लिमातुन। ये इसकी रफई हालतें हो गई, वाहिद, तस्निया, जमा। आए आप इसके मंसूब देखते हैं कि इसकी नस्बी हालत कैसी है। वाहिद हो जाएगा मुस्लिमतन, ताए मरबूता के साथ नस्बी तनवीन होने के बावजूद भी अलिफ नहीं आएगा, मुस्लिमतन। इसका तस्निया कैसे बनेगा? मुस्लिमातन के साथ ही आप या और नून की एडिशन कर देंगे। या के ऊपर सकून है, या से पहले जबर है और नून के नीचे जेर है। मुस्लिमातैनी यानी 2 मुसलमान औरतें। नस्बी जमा कैसे होगा? इसके साथ हम अलिफ और ते का एडिशन कर रहे हैं और ते के नीचे जेरी तनवीर, मुस्लिमातिन। यहां ये बात नोट करने वाली है कि है तो ये नस्बी हालत, लेकिन जमा के सीगे में ते के नीचे जेरी तनवीन आ रही है, तो इसका जमा इसी तरह से बनता है। जेरी हालत में आ जाइए, वाहिद हो जाएगा मुस्लिमातिन। तस्निया और जमा यहां पर भी नस्बी हालत की तरह ही होते हैं, सेम होते हैं, तो ये हो जाएगा मुस्लिमातैनी, मुस्लिमातिन। अब हम इसकी मारफा की गर्दान करेंगे। रफई हालत सबसे पहले हम देखते हैं, ये हो जाएगा अल मुस्लिमातु, अल मुस्लिमाताने, अल मुस्लिमातु। नस्बी हालत हो जाएगी अल मुस्लिमाता, अल मुस्लिमातैनी, अल मुस्लिमाती। जेरी हालत हो जाएगी अल मुस्लिमाती, अल मुस्लिमातैनी, अल मुस्लिमाती। अब हम एक और इस्म लेकर उसकी गर्दान बनाते हैं, काफिरुन। सबसे पहले हम मुजक्कर की गर्दान बनाएंगे। मुजक्कर रफई वाहिद, काफिरुन, एक काफिर मर्द। तस्निया इसका हो जाएगा काफिरानी और जमा हो जाएगा काफिरूना।
इसकी नस्बी हालत हो जाएगी काफिरन, जैसे कि नस्बी तनवीन आई है तो उसके साथ अलिफ आएगा। इसका तस्निया हो जाएगा काफिरैनी और जमा होगा काफिरीना। जेरी हालत काफिरिन, तस्निया जमा सेम है नस्बी की तरह, काफिरैने काफिरीना। ये मुजक्कर की नकरा की गर्दान है। इसकी मारफा की गर्दान कैसे बनेगी? अल काफिरू, अल काफिराने, अल काफिरूना, अल काफिरा, अल काफिरैने, अल काफिरीना। जेरी हालत हो जाएगी अल काफिरी, अल काफिरैने, अल काफिरीना। इसकी मोन्नस की गर्दान किस तरह बनेगी? काफिर के साथ वही ताय मरबूता लगा दीजिए तो हो जाएगा काफिरातुन। रफई हालत सबसे पहले करते हैं हम, काफिरातुन, तस्निया इसका हो जाएगा काफिराताने और जमा काफिरातुन। नस्बी हालत कैसे होगी? काफिरातन। अब इस ताए मरबूता पे नस्बी तनवीन है लेकिन अलिफ नहीं आएगा, ये रूल है, रिमेंबर। तस्निया हो जाएगा काफिरातैनी और जमा काफिरातिन। यहां पर भी आपको बताया था कि ये नस्बी जमा है लेकिन ता के नीचे जेरी तनवीन आती है, इसको ऐसे ही लिखा जाता है। आ जाइए अब जेरी हालत देखते हैं। काफिरातिन, काफिरातैने, काफिरातिन, सेम एज नस्बी। इसकी मारफा की गर्दान कैसे बनेगी? अल काफिरातु, तनवीन ड्रॉप हो गई है, राइट। तस्निया अल काफिराताने, अल काफिरातु। नस्बी हालत अल काफिराता, अल काफिरातैने, अल काफिराती। जेरी हालत अल काफिराती, अल काफिरातैने, अल काफिराती। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं मोमिनुन की। आयस की गर्दान बनाते हैं। रफई हालत सबसे पहले लेते हैं, वाहिद के सीगे में आ जाइए और मुजक्कर की गर्दान हम सबसे पहले बना रहे हैं, ठीक है। मोमिनुन, तस्निया हो जाएगा मोमिनाने और जमा मोमिनूना। ये हमने मुजक्कर की रफई हालतें देखी हैं तीनों, वाहिद, तस्निया, जमा। नस्बी हालत की तरफ आ जाइए। वाहिद होगा मोमिनन, मोमिनैने, मोमिनीना, तस्निया, जमा। इसकी जेरी हालत देखिए, मोमिनिन, तस्निया हो जाएगा मोमिनैने, जमा मोमिनीना, सेम एज नस्बी। ये मुजक्कर की नकरा की गर्दान है। इसकी मारफा की भी इसी तरह से बनेगी, अल मोमिनू, तनवीन ड्रॉप कर देंगे। मोन्नस की गर्दान कैसे बनेगी? मोमिनातुन, तस्निया हो जाएगा मोमिनाताने और जमा मोमिनातुन। ये इसकी रफई हालत थी, वाहिद, तस्निया, जमा। नस्बी हालत हो जाएगी मोमिनातन, मोमिनातैनी, मोमिनातिन और जेरी हालत मोमिनातिन, मोमिनातैनी, मोमिनातिन, सेम एज नस्बी। इसकी भी मारफा की गर्दान उसी तरह बन जाएगी, अल लगा देंगे, अल मोमिनातु, और आगे की सारी गर्दान बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। गर्दान बनाते वक्त जिस तरह मैंने आपको बताया कि नस्बी जेरी हालतें जो हैं, तस्निया और जमा, वो सीगे सेम होते हैं। मुजक्कर में भी आपने देखा और मोन्नस में भी देखा आपने। तो अब जहन में एक क्वेश्चन आता है कि हम पहचानेंगे किस तरह। तो उसके लिए जब हम कुरान में देखेंगे, सेंटेंस को जब हम देखेंगे, उसके हिसाब से वो इस्म जो भी बन रहा होगा उसकी नस्बी और जेरी हालत हम उस तरह से डिसाइड कर लेंगे और ये इतने कोई मुश्किल नहीं होता। ओके, गर्दान बना लेने के बाद अब हम सीगे की थोड़ी पहचान देखते हैं। अगर मैं पूछूं मुस्लिमिन ये कौन सा सीगा है, तो आपका जवाब क्या होगा? मुजक्कर मजरूर वाहिद। मुस्लिमूना ये कौन सा सीगा है? मुजक्कर रफई जमा। मुस्लिमीना ये क्या सीगा है? आपका जवाब होगा मुजक्कर नस्बी या जेरी जमा। ठीक है,
مؤنث میں مسلماتن، یہ کیا صیغہ ہے؟ مؤنث رفعی جمع، مسلماتن مؤنث مجرور واحد. یعنی ہم نے فل لوکیشن دینی ہے، اسم کی ہم نے پوری پہچان دینی ہے. ہم نے بتانا ہے کہ اس گردان میں، اس ٹیبل میں یہ اسم جو ہے وہ کس جگہ لوکیٹ کر رہا ہے. آپ کی پریکٹس کے لیے ہم آپ کو کچھ اسم دے رہے ہیں. اپنی اسم کی گردان کو سامنے رکھتے ہوئے ان الفاظوں کی آپ نے پوری گردان بنانی ہے، تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے صیغوں کی پہچان ہو جائے، ان کی اعرابی حالتوں کی پہچان ہو جائے. آپ کو کرنا یہ ہے کہ جو بھی لیسن آپ کو کروایا جائے اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے. کوئی پوائنٹ سمجھ میں نہ آئے تو بار بار ریپیٹ کر کے اسے سمجھنا ہے. جیسے ایک اونچی بلڈنگ بنانے کے لیے اس کی بیس اور پلرز اتنے ہی اسٹرانگ ہونے چاہیے. کمزور بنیادوں کے ساتھ اونچی بلڈنگ نہیں بنائی جا سکتی. عربی کی بنیاد اس کے قواعد ہیں. آپ کو قواعد جتنے کلیئر ہوں گے آپ کی عربی کی عمارت اتنی ہی اونچی ہوگی. اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے نوٹس بار بار ریوائز کریں. آپ کو خود ہی سب کچھ یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا لیسن 1 ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. يا حامل القرآن يا حامل